Hello everyone. Today we will discuss about standard deviation and related concepts. Dear students, we have already discussed about how standard deviation is calculated in a continuous series, in a discrete series and in an individual series. Today we will discuss about few related concepts along with the topic that is combined standard deviation. In order to learn about the combined standard deviation, we must be able to understand, we must be able to recall how combined arithmetic mean is calculated. We have already discussed the measurement of combined arithmetic mean in chapter number 9. So if you have any problem, you must go and revise the measurement of combined arithmetic mean from chapter number 9. Now, how combined standard deviation is calculated? Bache, you are to learn this formula. Formula is little bit complicated. It is little bit difficult to learn as well as understand this formula. Otherwise, it's very simple to use this formula. This is sigma 1 2. It is possible to compute combined mean of two or more than two groups. Combined standard deviation is denoted by sigma 1 2. Sigma 1 2 is equal to n1 sigma 1 square. n1 means number of items of first series. Sigma 1 means standard deviation of first series. n2 means number of items of second series. Sigma 2 square means standard deviation of second series. d1 here means the deviation. d2 means the deviation. Now what's about the d1? d1 means the deviation of x1 bar, that is mean of the first series, from combined mean, that is x bar 1 2. Similarly, d2 is x2 bar minus x bar 1 2. x bar 1 2 means combined mean of series 1 and 2. x1 bar means arithmetic mean of first series. x2 bar means arithmetic mean of second series. And x1 2 bar is equal to combined arithmetic mean. So dear students, in this very topic, we need to calculate combined arithmetic mean. Now let's discuss one example. This is an example. In this very question, this is the example. In this very question, boys and girls, we have two series. One is related with boys and second is related with girls. For first series, number, that is n1 is equal to 100. Mean weight, that is x1 bar, is equal to 60 kg and variance sigma square is equal to 9. बच्चे, वेरियंस जो होता है ये स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है. देखो बेटा, हमने स्टैंडर्ड डेविएशन लिया था, सिग्मा लिया था, और यहाँ हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं. लेकिन जब हम वेरिएंस निकालते हैं, ये सिग्मा स्क्वायर होता है, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन होल स्क्वायर इज इक्वल टू वेरिएंस. आज हम इस टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे. चलिए, सो दिस इज n1 x1 बार. इसी तरह से फॉर गर्ल्स वी हैव n2 दैट इज़ 50 and 45 kg is equal to x2 bar. Now we will use the formula. We have the formula. This is combined standard deviation is equal to n1 sigma 1 square plus n2 sigma 2 square plus n1 d1 square plus n2 d2 square divided by n1 plus n2 then square root. अगर हम इस फॉर्मूले को ध्यान से देखें, हमारे पास n1 है, सिग्मा 1 गिवन है, n2 है, सिग्मा 2 गिवन है. सिर्फ दो ही क्वांटिटीज़ हमारे पास ऐसी हैं जो अननोन है, एक d1 स्क्वायर और d2 स्क्वायर. d1 का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था. दिस इज़ डेविएशन ऑफ x1 बार फ्रॉम x12 बार. इसका मतलब हमें d1 निकालने के लिए ज़रूरत पड़ेगी x बार 1 2, मतलब कंबाइंड मीन की. अब आ जाइए, how combined mean can be calculated. Recall your formula. This is n1 x1 bar. n1 is 100,
x1 bar is 60 plus n2 is 50, x2 bar is 45 kg. Then substitute the values. We have x bar 1 2 is equal to 52. From this 55 we can easily calculate d1 and d2. What is d1? This is x1 bar minus x12 बार मॉड का मतलब सारी वैल्यूज़ जो है वो पॉजिटिव हो जाएंगे. सो 60 माइनस 55 दिस इज़ 5, 45 माइनस 55 दिस इज़ 10. नेगेटिव साइन हम यहाँ पर नहीं लेंगे क्योंकि ये जो बार आ जाता है या मॉड आ जाता है इसका मतलब क्या होता है, नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव. नाउ सब्स्टिट्यूट ऑल दीज वैल्यूज़ इन द फॉर्मूला. we will be able to find out स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ द कंबाइंड डाटा. ये हमारा आ गया 7.57. दिस इज़ आर 7.57. दिस इज़ आर स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ द कंबाइंड डाटा. ये हमारा क्वेश्चन यहाँ हो गया. इसके बाद आपको एक और इसमें फाइंड आउट करना था. द फॉलोइंग आर सम ऑफ द पर्टिकुलर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. फाइंड द स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ द कंबाइंड डाटा. विच ऑफ द टू डिस्ट्रीब्यूशन इज़ मोर वेरिएबल. जब हमें कंपैरिजन करना होता है, इस क्वेश्चन को मैं अभी आगे कराऊंगी, मैं यहाँ पर इसको ले रही हूँ. जब हमें कंपैरिजन करना होता है दो सीरीज़ का तो हमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की ज़रूरत पड़ती है. कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैसे निकालना ये अभी हम आगे वाली वीडियो में देखेंगे. इस पूरे टॉपिक में हमने सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट प्रिपेयर किया. दिस इज़ द कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन. मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. दिस इज़ कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस. बच्चे अभी हमने यूज़ कर लिया था इसको. Standard deviation, this is SD. How it is calculated in different types of series, we have already discussed about this topic. Now, standard deviation is denoted by small sigma and coefficient of standard deviation, this is sigma by x bar. What is x bar? X bar is the mean of the series. अगर हमने actual mean से लिया तो हम इसको actual mean से divide कर देंगे. अगर हमने assumed mean से लिया तो भी approximate आंसर आता है हमारा. वैसे जब हम लेते हैं तो हमें इसको एक्चुअल मीन से ही डिवाइड करना चाहिए. देन वेरिएंस. वेरिएंस क्या होता है? स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, दैट इज़ सिग्मा स्क्वायर. मतलब स्क्वायर रूट नहीं लेना, सीधा ही हम उसको स्क्वायर ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वेरिएंस. अगर आपने स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर लिया तो आप कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ईजिली कैलकुलेट कर सकते हो. इसी तरह से आप वेरिएंस भी ईजिली कैलकुलेट कर सकते हो. मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. दिस इज़ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, दिस इज़ CV. स्टैंडर्ड डेविएशन जब हम निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन को निकालने के बाद हम निकाल सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के लिए फॉर्मूला हम क्या यूज़ करेंगे? दिस इज़ सिग्मा डिवाइड बाय एक्स बार मल्टीप्लाइड बाय 100. अगर हम अपनी मेमोरी को रिकॉल करें तो अभी हमने डिस्कस किया था कि सिग्मा बाय एक्स बार दिस इज़ कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन. सो अगर हम कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन को 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? CV. सो व्हाट इज़ CV? दैट इज़ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन मल्टीप्लाइड बाय 100 और दिस इज़ सिग्मा डिवाइड बाय एक्स बार इंटू 100. सो दिस इज़ हाउ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैन बी कैलकुलेटेड. नाउ अब मैं वापस जा रही हूँ अपने क्वेश्चन में, छोड़ कर आई थी मैं यहाँ पर हमने किया था विच ऑफ द टू डिस्ट्रीब्यूशन इज़ मोर वेरिएबल. जब भी हमें दो सीरीज़ को कंपेयर करना होता है तो हम वहाँ पर कंसिस्टेंसी देखनी हो, यूनिफॉर्मिटी देखनी हो, होमोजेनिटी देखनी हो तो हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालते हैं. इस क्वेश्चन में कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हम बॉयज़ और गर्ल्स का निकालेंगे क्योंकि हमारे पास दो सीरीज़ हैं, एक बॉयज़ की और एक गर्ल्स की. हमने क्या किया? बॉयज़ का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाला. कैसे निकलेगा? वैल्यू पुट करेंगे. दिस इज़ सिग्मा बाय x1 बार इंटू 100. वेरिएंस आपके पास सिग्मा स्क्वायर 9 था, इसका मतलब सिग्मा कितना आ गया? 3. इसी तरह से यहाँ वेरिएंस आपका 4 था, इसका मतलब सिग्मा 1 आपका 3 आया, सिग्मा 2 आपका 2 आ गया. वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करिए. अगर हम देखें तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना ही डिस्पर्शन भी ज़्यादा होगा और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जितना कम होगा उतनी ही
उसमें यूनिफॉर्मिटी ज़्यादा होगी। चलिए इस पॉइंट को डिस्कस करने के लिए हम आगे की स्लाइड में चलते हैं। दिस इज सुटेबिलिटी ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, that is CV, is used to compare the variability, unity, stability and uniformity of two different statistical series. Higher value of coefficient of variation suggests greater degree of variability and lesser degree of stability. अभी हमने अपने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, यहाँ पर ध्यान रखना, जितना ज़्यादा CV आता जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आता जाएगा, उतना ही डिस्पर्शन की वैल्यू बढ़ती जाएगी। मतलब कि जो हम डिस्पर्शन हमारा होता क्या है कि एक्चुअल मीन से वो कितना वेरी कर रहा है, x माइनस एक्स बार, ये हमारा होता है डिस्पर्शन, डेविएशन। तो जब हम बात करें कि जितनी ज़्यादा CV बढ़ता जाएगा उतना ज़्यादा डिस्पर्शन भी बढ़ता जाएगा, मतलब वेरिएबिलिटी बढ़ती जाएगी, एक्चुअल वैल्यू जो है वो मीन से उतनी दूर होती चली जाएगी। अब हमारे क्वेश्चन में क्या था, अभी हमने ये क्वेश्चन किया था कि बॉयज़ में कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमारा ज़्यादा आया था एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स। इसका मतलब हायर CV क्या इंडिकेट कर रहा है, दैट देयर इज़ लेस स्टेबिलिटी एंड मोर वेरिएबिलिटी। तो अब आपका आंसर क्या था, विच ऑफ द टू डिस्ट्रीब्यूशन इज़ मोर वेरिएबल, दिस इज़ बॉयज़ वाला जो है वो मोर वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बड़ा आ गया। अगर यहाँ पर वेरिएबिलिटी की जगह आपसे स्टेबिलिटी पूछा जाता, फिर हम क्या कहते, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर गर्ल्स इज स्टेबल बिकॉज CV इज़ स्मॉलर। क्लियर? अगर वेरिएबिलिटी पूछ रहा है तो हम हायर CV को देखेंगे, अगर स्टेबिलिटी पूछ रहा है तो हम लोअर CV को देखेंगे। गॉट इट बेटा? चलिए फिर से आ जाइए। ऑन द अदर हैंड, अ लोअर वैल्यू ऑफ CV सजेस्ट्स lower degree of variability and higher degree of stability, uniformity, homogeneity and consistency. So अगर आपसे किसी भी क्वेश्चन में पूछा जाए वेरिएबिलिटी के बारे में, कंपैरिजन करा रहा दो सीरीज़ को, और आपसे डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी पूछ रहा है, यूनिफॉर्मिटी पूछ रहा है, होमोजेनिटी पूछ रहा है, कंसिस्टेंसी पूछ रहा है, ये वेरिएबिलिटी पूछ रहा है, तो आपको CV निकालना पड़ेगा। CV जितना बड़ा होगा उतनी वेरिएबिलिटी ज़्यादा होगी, और CV जितना कम होगा उतनी यूनिफॉर्मिटी, कंसिस्टेंसी, होमोजेनिटी, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट few examples. So here is an example. Coefficient of variation of two distributions are 60 and 70. Coefficient of variation given है, coefficient of variation मतलब आपको CV given है। फॉर्मूला आपने लर्न करना है, दिस इज समेशन बाई एक्स बार इंटू 100। क्लियर? और उससे आपको क्या दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डिवीजन भी दिया हुआ है, मतलब उससे आपको सिग्मा 1 भी दिया हुआ है और सिग्मा 2 भी दिया हुआ है। आपको अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करना है। जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज़। अपना ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए। CV का फॉर्मूला हमने लिखा, जो जो वैल्यूज़ आपके पास गिवन थी वो वैल्यूज़ आपने सब्स्टिट्यूट की, आपका मीन एक सीरीज़ का भी आ गया और दूसरी सीरीज़ के लिए भी मीन आ गया। बच्चे जो आपको लर्न करना है वो फार्मूलाज लर्न करनी है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन का लर्न करना है, वेरिएंस का करना है और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का करना है। स्टैंडर्ड डिवीजन कैसे कैलकुलेट करना है ये आप पहले डिस्कस कर चुके हो। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वी हैव वन मोर क्वेश्चन। द फॉलोइंग वैल्यूज़ आर कैलकुलेटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ हाइट्स एंड वेट्स। हाइट एंड वेट गिवन है हमारे पास। हाइट एंड वेट दो सीरीज़ हैं। सपोज करिए कि दो वेरिएबल्स हैं जिनको हम कंपेयर करना चाहते हैं। हाइट का मीन भी गिवन है, वेरिएंस भी गिवन है, वेट का मीन भी गिवन है, मीन का वेट का वेरिएंस भी गिवन है। हमें कंपेयर क्या करना, हम वी वांट टू कंपेयर दीज टू। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हम हाइट का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी निकाल लेंगे और वेट का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी निकाल लेंगे। फॉर्मूला आपको पता है, स्टैंडर्ड डिवीजन बाय मीन। स्टैंडर्ड डिवीजन कैसे निकलेगा बच्चे, वेरिएंस का मतलब होता है सिग्मा स्क्वायर। हमें चाहिए सिग्मा, हम क्या करेंगे इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। सो 127.69 का हम सबसे पहले क्या लेंगे, सबसे पहले हम स्क्वायर रूट लेंगे, दिस इज 11.3। इसको ना थोड़ा सा कंपैरिजन भी, थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेट भी करके आप कर सकते हो। देखो इसका अप्रॉक्सीमेशन आपको सिखाती हूँ। अगर आप अपनी मेमोरी को रिकॉल करो
तो 121 का जो स्क्वायर रूट होता है ना वो 11 होता है, ठीक है। और जो 12 होता है उसका स्क्वायर रूट होता है 144। क्लियर। अगर हम थोड़ा सा ध्यान रहे, हमारे पास वैल्यू 127 है। 127 121 से बड़ा, इसका मतलब जो भी स्क्वायर रूट आएगा 11 से तो बड़ा ही आएगा। लेकिन वो 144 से काफ़ी कम है, इसका मतलब वो 12 नहीं आने जा रहा। अब फिर से हम देखें कि अगर मैं 11.5 ले लूँ तो ये मेरा 11 और 12 के बिल्कुल बीच में आना चाहिए, मतलब लगभग 130 या 35 आना चाहिए, जो मेरा नहीं आ रहा। इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, कोई ऐसी वैल्यू लेनी पड़ेगी जो 11 के क्लोज हो। 11.5 तो 11 और 12 के बिल्कुल मिडल में आ रहा है। अगर मैं 11.6 लेती हूँ तो ये 12 के करीब जा रहा है, जो नहीं हो रहा। इसका मतलब मुझे एक ऐसी वैल्यू लेनी पड़ेगी जो 11 के पास हो और 11 के पास हो लेकिन 11 से ज़्यादा हो। तो मैंने यहाँ अप्रॉक्सीमेटली 11.3 ले लिया। मैं इसको 11.2 भी ले सकती थी, मैं 11.4 भी ले सकती थी। 11.4 धीरे धीरे 12 के पास जा रहा है, तो मैं 11.4 को अवॉइड कर सकती हूँ। मैं इसको क्या कर सकती थी बच्चे, 11.3 ले सकती थी। क्लियर। सो ये मेरा अप्रॉक्सीमेशन से भी काम मेरा चल जाएगा। ये मैंने 11.3 ले लिया। अब आगे मेरा सारा प्रोसेस वही रहेगा। वेरिएंस ऑफ वेट भी इसी तरह से मुझे निकालना है। 231 पॉइंट समथिंग था ये, 231 पॉइंट समथिंग में हम 230 दिस इज़ 23 था, 231 नहीं था बच्चे, दिस इज़ 23.13 था। तो इसको भी जब हम कैलकुलेट करेंगे ना तो उसी तरह से राउंड अप करके कर लेंगे। चलो मैं आपको समझाती हूँ कि हम इसको कैसे राउंड अप कर सकते हैं। चलिए बेटा देखिए, मेरे पास था 23 पॉइंट समथिंग था, 23 पॉइंट समथिंग था, लेट इट बी 13, कुछ ऐसा था। अगर मैं अपनी मेमोरी को रिकॉल करूं तो 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 5 होता है। अब यहाँ से मुझे ये पता लग रहा है। और 4 का कितना होता है, 4 × 4 16। अब ये 16 से बड़ा है, इसका मतलब जो भी मेरा आएगा वो 4 से बड़ा आएगा। अब 23 और 25 में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, इसका मतलब ये बहुत हद तक 5 के करीब जा रहा है। तो मैं इसको अप्रॉक्सीमेटली 4.8 ले सकती हूँ। क्लियर। और आपका आ भी 4.8 ही रहा है। मतलब कई बार ऐसा होता है कि हम निकाल पाते हैं। अगर आपको स्क्वायर रूट नहीं निकालना आ रहा, या तो स्क्वायर रूट निकालना सीखिए, अदरवाइज़ क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में नियर अबाउट आंसर हम फाइंड आउट करते हैं, इसलिए हम अप्रॉक्सीमेशन करके भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ये दोनों ही केसेस में मैंने आपको अप्रॉक्सीमेशन सिखा दिया। अब आपके पास अपने क्वेश्चन को देखिए, मीन आपके पास आ गया, स्टैंडर्ड डिवीजन आपके पास आ गया। आप बड़ी आसानी से दोनों के लिए कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल सकते हो। इस पेज पर उसने क्या किया, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ इन हाइट निकाल दिया, दिस इज़ 4.695। और नेक्स्ट वो क्या कर रहा है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल रहा है वेट का। अब पूछा क्या था उससे क्वेश्चन में पूछा था उससे, कैन वी से दैट द वेट शोज ग्रेटर वेरिएशन देन हाइट्स। ग्रेटर वेरिएशन कब आएगी बच्चे, ग्रेटर वेरिएशन कब आएगी, ग्रेटर वेरिएशन तब आएगा जब वेट का CV ज़्यादा हो। अगर वेट का CV ज़्यादा है तो वो ग्रेटर वेरिएशन आ गया। अब हम अपने क्वेश्चन में चेक करें, हमारे क्वेश्चन में क्या आ रहा है, वेरिएंस ऑफ, हमारे क्वेश्चन में CV ऑफ हाइट आया 6.95 और CV ऑफ वेट आया 9.18। किसका CV ज़्यादा आया, वेट का। जिसका CV ज़्यादा होता है उसमें वेरिएशन ज़्यादा होती है। सो हमने क्या निकाला, सिंस CV in weights is greater than CV in heights, therefore we can say weight show more variability than heights। यही क्वेश्चन था हमारा। अगर CV बड़ा आ जाता है तो डिग्री ऑफ वेरिएशन ज़्यादा हो जाती है, और CV बड़ा आता है तो डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी कम हो जाती है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मतलब वेरिएशन बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब वेरिएबिलिटी ज़्यादा होती जा रही है। क्लियर बेटा। मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन।
Two plants A and B of a factory show following results about the number of workers and the wages paid to them. यहाँ पर भी हमको दो सीरीज़ को कंपेयर करना है. नंबर ऑफ वर्कर्स हमारे पास है N1 N2 गिवन है, एवरेज मंथली वेजेस गिवन है, मतलब X1 बार भी गिवन है और X2 बार भी गिवन है. वेरिएंस इन डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सिग्मा स्क्वायर हमारे पास है, तो हम सिग्मा स्क्वायर है तो हम यहाँ से सिग्मा निकाल लेंगे, इसका स्क्वायर रूट लेकर सिग्मा 2 निकल आएगा, इसका स्क्वायर रूट लेकर. सिग्मा 1 है 81, सिग्मा स्क्वायर है 81, तो सिग्मा 1 कितना हो जाएगा 9 और सिग्मा 2 कितना हो जाएगा 10. बस वैल्यूज़ को पुट करिए और आपका आंसर निकल आएगा. यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा था, इन विच प्लांट ए और बी इज़ देयर ग्रेटर वेरिएबिलिटी इन इंडिविजुअल बेसिस. इसका मतलब हमें निकालना पड़ेगा सी बी. जिसका भी सी बी ज़्यादा आ जाएगा फर्म ए का या फर्म बी का, जिसका सी बी ज़्यादा आ जाएगा उसी में ग्रेटर वेरिएबिलिटी इन इंडिविजुअल वेजेस आ जाएगा. चलिए स्टार्ट करें इस क्वेश्चन को. वेरिएंस निकाला हमने, दोनों का ही हमने स्क्वायर रूट लेकर ले लिया. अब हम क्या करेंगे, सिंस द एवरेज मंथली वेजेस इन बोथ द प्लांट्स इज सेम 2500, therefore the plant with greater standard deviation will have more variability. Does the plant B has greater variability in the individual wages? या फिर आप क्या करोगे, आप यहाँ सी बी फाइंड आउट करिए और सी बी को कंपेयर कर लीजिए. क्लियर बेटा? विद दिस क्वेश्चन इज़ ओवर. डियर स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है बच्चे, अपनी बुक में से जितने भी टेक्सचुअल क्वेश्चन है स्टैंडर्ड डिविएशन के वो आपने प्रिपेयर करने हैं. थोड़ा सा टॉपिक स्टैंडर्ड डिविएशन का रह गया, मेरिट्स और डीमेरिट्स का और असाइनमेंट्स का. मेरिट्स और डीमेरिट्स इतने इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है. पहले हम इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स करते थे क्योंकि हमारे पास बहुत सारे अलग से मेथड से रेंज था, क्वार्टाइल डिवीजन था, मीन डिवीजन था, लॉरेंज कर्व थी, तो हम उसमें कंपेयर करके फाइंड आउट करते थे कि स्टैंडर्ड डिवीजन इज़ द बेस्ट मेथड. तो अब हमारे पास है ही सिर्फ स्टैंडर्ड डिवीजन, तो हम इसमें मेरिट्स और डीमेरिट्स की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे. आपको इसके कैलकुलेशन पार्ट को बहुत अच्छे से करना है. सो आपने क्या करना, यू आर टू प्रैक्टिस द numericals based on standard deviation and related concepts from your book, and if you have any doubt you can send me your doubt. Clear beta? So enjoy your day, have a nice day. Dear students, I want to make it very very clear, on Thursday there will be a written test based on mean, median, mod and standard deviation. So do revise all the topics properly and try to perform excellently in your test. Got it beta? Have a wonderful day. Goodbye.